Hi everyone. As the Indian shipping evolves, one thing that takes the center stage is the unsung heroes who keep the wheel turning, our seafarers. From deck crew to officer, engineer to master, every journey starts from a dream. But achieving all dreams isn't easy. It takes grit, determination, and perseverance. Not everyone reaches the top, but one who does inspires us all. On this podcast, we will explore the challenges, triumphs, and lessons learned from those who have braved the seas and climbed up the ladder. We'll also explore the ups and downs, do's and don'ts, and secrets to success. Our today's guest is someone who started his sea career as a deck crew and then took exams to become a third officer. Join me as we talk to Mr. Vikas, who is going to share his story, insights, and advice. Whether you're joining as a deck crew or aiming to get that officer's chair, this podcast is going to be your compass to navigation. Hi, Vikas. Welcome to podcast. Thank you, sir. So, Vikas, now you've been working with me from last 3 months, almost three and a Yes, half sir. months, Yes, sir. and I have seen you working and किस तरह से तुम्हारा जॉब की तरफ एटीट्यूड है और I think it will be very inspiring for our viewers Yes, if they hear your story. That's my personal opinion, yes. and that is the reason why I have you here. Yeah. So please give a brief introduction about yourself. I'm Vikas Tandil and I'm from Valsad, which is in Gujarat, as you know that. And there are many seafarers come from the Gujarat. And initially, I started my career as a trainee seaman, deck crew, and now I'm sailing as an third officers in a container ship. Started as a trainee OS. Yes. और कितने साल पहले शुरू किया था? मैंने स्टार्ट किया था 2015 में. I joined my first vessel as a trainee seaman. Then after that, I got promoted as a OS, then AB. Then after 36 month, मैंने UK में जाके एग्जाम तो दिया. हम लोग इस बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारी जर्नी थी बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इनिशियली कि शुरुआत में ये कैसे ये सपना देखा कि यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी हाउ यू गॉट टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी. So initially, first of all, I would say that the place from where I belong, there are 90% people in a merchant navy, and whether they are in a seafarer or a fisherman, and my father was also a seaman. All right. So, and my friends, my family members, and my relatives, they all are in merchant navy. Mm-hmm. So that also inspired me to join merchant navy. And my father was keep on telling me that what seafarers do, how they work on board, how they travel the world, and they also get paid higher Yeah. compared to the person who earning on the land. And yeah, I also want my help to my family financially. And yes, I love to travel, sir. कब तुम्हारे दिमाग में ये आया कि नहीं मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है वाज इट लाइक इन हाई स्कूल और सीनियर स्कूल. When I was in a 10th standard, I got well scored at that time, and my brother, my relative, he told me that अगर merchant navy join करना है तो higher rank पे जाना. So I decided that time only that I will be joined as an officer. And yeah, that was the time that I decided to join merchant navy. And I told you before, my all the relatives, my friends are in a merchant navy. So you were living in that environment where people Yes, come from seafaring yes, background, eh? yes, And that inspired you. yeah. One thing is a little surprising. Why you did not go as a pre-sea cadet and then join shipping? Why did you pursue this through the crew rank? So initially, my goal was is the same. Like I want to become an officer, but somehow I couldn't score well in a 12. Then I decided to do the GP ratings because I want to become an officer. That's it. मैंने pre-C किया. Then I joined my first vessel as a trainee seaman, and I saw the officers. I saw officers, their attitudes, and that inspired me that one day I will be become that officer. And I saw them in a uniform. The dignity of uniform that keep pushing me towards them. I was very lucky that I got very good officers in my throughout my career. So they helped me a lot, and they give me some books to read, and I used to read that when I get some time. I used to read that, and if I have some doubts, I directly go them and ask them, and they clear my doubts throughout their expenses and all. And So that helped you. yeah, that helped me a lot. All right.
So, do you remember your first day as a trainee seaman on board? Can you share your experience? Initially, first day I was joined from New Orleans, US. First day when I joined, the house cleaning was going on at that time. So bosun wake me up at the 6 o'clock in the morning, and he told me before that we'll give you call before 15 to 10 minutes, and he told me that 6 o'clock will be go there, and 5:30 I was ready on my with the full means boiler suit and all in my cabin. I was sitting on sofa. I was literally thinking that what should I have to do because I never No knew that. idea. So then I before 15 minutes I went to deck, and then I wait for some crew members to come. Then bosun came, and then directly we go to the inside the hole, Uh-huh. and we were doing a house cleaning, and it was very tough because when I that time I was very small. It is about 18 years. Uh-huh. I was Very very young. small, yeah, very young. So it was very hard me. Then from 6 o'clock to night 12 o'clock, I was continuously working Working with the inside the boat cargo. because we have to Yeah. make the boat ready to Ready. load. So it was very hard first day that. तो ऐसा तो नहीं लगा उस टाइम पे कि यार गलती कर ली अभी ज्वाइन करके? नो सर, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा क्योंकि मेरा गोल था कि बस मुझे ये मर्चेंट नेवी में मुझे ऑफिसर बनना है. Whatever it is, no matter how, if I'm joining as a trainee seaman, but my goal is was clear. So I never thought like this. Which year was that? 2015, 2015. yes. तो उसके बाद how many months you worked as a trainee OS, and can you explain how was the journey until you become a Navy? So in the trainee seaman, मैंने 9 months किया. Then after 1.5 months, I again joined, and then within 15 days, I got promoted as a OS. Okay. Then मैंने 9 महीने तक OS किया. Then next contract as a OS, same 9 months किया. Then I directly joined as a AB. Then 2 contracts किए मैंने AB में. Then I went for exam. All right. But is there any record book or something that you have to maintain as a trainee OS or OS before you become a Navy? यस, if जैसे ट्रेनी सीमेन है तो वॉच कीपिंग के लिए उनको एक टार बुक लेके जाना पड़ता है विच इज फॉर वॉच कीपिंग. Okay. सो उनके लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए. All right. सो आई ब्रिंग दैट टार बुक एंड आई फिल अप दैट. So the very first day you started that when you नो came on नो board. सर, आफ्टर 3 months. All right. बिकॉज 3 months तो मुझे काम सीखने में और वहाँ पे मतलब फैमिलियर होने को लगा. तो 3 months के बाद मैंने फिलअप करना स्टार्ट किया. उसमें बहुत सारे टास्क रहते हैं जो हमको फिलअप करना रहता है, और टास्क ऐसे नहीं कि साइन करते हैं. वो ऑफिसर्स कुछ ऐसे रहते हैं जो ऑलवेज या जो टास्क है उसके बारे में पूछेंगे कि Yes. क्या, तो यू सपोज टू नो दैट. Yes. सो ऐसे ही मेरा जर्नी था. मीन्स फर्स्ट ट्रेनिंग सीमेंट में मैंने बहुत सारे टास्क है वो कंप्लीट किए, और उसकी वजह से मुझे साइन भी मिला. देन वो टार बुक को मैंने कंपनी में सबमिट किया, जो मेरा कंपनी है उसमें. Then after 1 month or 15 days, I got my watch keeping. And after watch keeping, I became an OS. Then OS में 18 months के बाद एक और टार बुक रहता है जो कि अगर आप एबी बनने वाले हो तो उसके लिए सीओपी के लिए चाहिए. सीओपी चाहिए. अगर एबी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सीओपी चाहिए. तो उसके लिए ओएस के बाद आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए. एक्सपीरियंस. यस, उसमें भी सेम है. टार बुक है वो थोड़ा ज़्यादा है. ओके. उसमें बहुत सारे टास्क है, वो सब फिलअप करना रहता है. देन वी कैन सबमिट टू द कंपनी और डीजी वेबसाइट. ऑलराइट. एंड ये जो टास्क रहते हैं, आई थिंक डिलीजेंटली करना कितना इंपॉर्टेंट है? हाउ इट हेल्प यू? बिकॉज आई बिलीव यू डिड इट वेरी डिलीजेंटली, ऑल टास्क प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऑफिसर्स को वो टास्क के प्रिपेयर करके जाना, उनसे सिग्नेचर लेना. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टारगेट दिस टार बुक वेरी सीरियसली? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिकॉज अगर टार बुक अच्छे से कंप्लीट करोगे, उसमें बहुत सारे टास्क है, वो आप बराबर से करोगे तो आपको मतलब तकलीफ नहीं आएगी ऑन बोर्ड. आप 9 महीने यहाँ पे शिप पे काम कर, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, एंड क्या जो टास्क है वो अपने को सिखाते हैं कि क्या होना चाहिए. तो अच्छे से करेगा तो फिर जैसे दिन अच्छे से निकलेंगे. डू यू रिमेम्बर एनी क्वेश्चंस? एक दो क्वेश्चंस अगर तुम बताओ उस टार बुक से, कुछ याद हो तुम्हें? तो उसमें इवन
ब्रिज वॉच कीपिंग भी रहता है। ओके। ओके, तो जैसे एबी बनोगे आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ लाइट्स क्या है, शेप्स क्या है, हाँ हाँ। देन कैसे रिपोर्ट करना है, ऑलराइट। ऐसे सारे लुकआउट का रिपोर्टिंग कैसे लुकआउट का। करना है? यस, एंड आई एम श्योर कार्गो रिलेटेड भी होता होगा। यस, कार्गो रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड करना। अटेंड करना है। फिर लोडिंग लोडिंग डिस्चार्जिंग जो चल रहा है उसको मतलब मॉनिटर मॉनिटर करना। करने, कुछ भी होगा देन वर यू इन्वॉल्वड इन गैंगवे आईस्पेस ड्यूटीज आल्सो? नो, आई वाज नॉट involved in a gangway duties because AB was there. ऑलराइट। So I used to do soundings and all. ओके। तो soundings चलता था तो continuously मतलब लोडिंग डिस्चार्जिंग चल रहा है तो ऑलवेज You're taking in or deballasting water. यस, So you have to measure how much water in the यस, tanks. So यस, that's what you were doing. या And you mentioned that during your second contract, within 15 days, you got promoted. You joined as trainee OS. सेकंड टाइम। And then within 15 days, यस, they promoted you on board as an OS. यस, So what's the story behind 15 days is very short time. या What magic did you do on board? नो मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क्स ओवर देयर बिकॉज पोर्ट नज़दीक में था एंड हाँ। काम बहुत है Okay. एक्चुअली। सीमेंट लोड किया था हाँ। बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ बल्क एरिया। हम्म। सो सीमेंट लोड किया था तो बारिश की वजह से जो डेक पे सीमेंट गिरा था वो जम गया था, Okay. स्टक हो मतलब हाँ, हार्ड हो गया हार्ड था। हो गया। तो उसको कैसे भी करके निकालना है, पोर्ट पे पहुंच रहे 2-3 दिन में। तो आई वाज वर्किंग फ्रॉम 6 to 9-10। Sometimes. तो चीफ बॉस ने देखा, देन बोसन एबी लोग ने भी देखा कि हाँ बंदा एफर्ट डाल रहा है, काम कर रहा है। Mhm. तो उसकी वजह से उन लोग को लगा कि हाँ बंदा काम कर सकता है। Mhm. तो So that attitude towards your यस, job, the proactiveness helped you यस, to grow up the ladder more quickly. यस, तो ओएस में तो काफी सारा काम रहता है, जैसे तुमने कहा कि हैच कवर क्लीनिंग एंड ऑल दैट, यस, वर्किंग 6 on 6 off. बट एबी बनने से पहले स्टेयरिंग, शिप स्टेयरिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, यस, और आई थिंक तुम्हारी टार बुक का भी पार्ट है। यस, और जनरली जब पायलटेज होती है तो बोसन एंड ओएस आर स्टैंड बाय आइदर अ टैंकर स्टेशन फॉर इमरजेंसी, और दे आर बिजी इन प्रिपेयरिंग द पायलट लैडर और गैंगवे। तो कैसे टाइम निकालते थे कि पायलटेज के टाइम पे तुम्हें स्टीयरिंग का प्रैक्टिस मिल सके? जब भी मैं ओएस में था तो हमारा जो शिप था वो साउथ अमेरिका कोस्ट करता था। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग अर्जेंटीना रिवर में जाते थे, 36 आवर का जो रिवर ही है। तो जैसे रिवर में होंगे तो फिर सम टाइम मिल जाता है मुझे, क्योंकि आगे भी हम लोग तो स्टैंड बाय रहते थे, मैं और ट्रेनिंग से में स्टैंड बाय रहते थे। तो 6 on 6 off कर रहे होते तो आप 6 on 6 off होने के बाद जैसे मैं रेस्ट के लिए आएगा, 4 घंटा में रेस्ट कर लेगा, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा में ब्रिज पे जाएगा, कैप्टन से परमिशन लेगा। एंड हाँ ये भी स्टैंड बाय रहता बाजू में। एंड ऑफिसर्स भी होगा तभी, तो वो टाइम पे मैं कर लेता था। But that extra effort you used to give. The यस, rest hour में you would come and try your steering, practice the steering. यस, I think that is important, right? Because अभी भी कई बार मैंने भी ऐसे एबीज को देखा है जो they are good at their work, but steering का experience नहीं नहीं है. है। Because probably during the OS time they did not get opportunity, or they did not put in effort यस, to learn steering, and which is a very important trait of यस, a good able seaman, right? When you joined an AB as an AB, यस, so you were pretty confident in steering the vessel? यस, Alright. बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग कर लिया था, क्योंकि कंटिन्यूसली ये अर्जेंटीना रिवर कर रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, और पायलट क्या ऑर्डर्स दे रहा है तो वो मैं फॉलो कर रहा था, तो और स्टीयरिंग भी कर रहा था, वहाँ पे करंट भी ज़्यादा है तो अच्छे से मैं कर रहा था, तो कॉन्फिडेंट आ गया था। और जब एबी बन के आए, यस, और जब ओएस के टाइम पे, लाइक यू सेड कि रेस्ट आवर्स में यू वर डूइंग स्टीयरिंग प्रैक्टिस, यस, बट जो टार बुक है उसमें भी टास्क हैं, यस, तो वो पढ़ाई के लिए टाइम कब निकालते थे? जब भी सेलिंग रहेगा तो रात को तो मेरा ऑफ रहेगा, तो वो टाइम में मैं पढ़ लेता था, जो कुछ भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर लेता था ऑफिसर से पूछ वर यू के। कैरिंग सम बुक्स विद यू ऑन बोर्ड? यस, कुछ बुक्स कैरी करते थे, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में? या सॉफ्ट कॉपी में कैरी करता था, बहुत सारे पीडीएफ भी है थी मेरे पास, तो मैं वो पढ़ते रहता था। गुड. And then when you become an AB, how much salary were you getting? आई वाज गेटिंग 1320 30, डॉलर। या $120 you were getting. So a pretty good amount. At यस, that age, how old were you? आई वाज 24 years। A 24-year-old guy getting 1,300, $1,400. That's a pretty big amount. यस, And I believe cargo hatch cleaning, hold cleaning का भी extra money मिलती होगी. यस,
So that makes good money. गुड मनी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ओके अभी यार अच्छी सैलरी मिलने लग गई है, 24 साल का हूं मैं, एंड नाउ व्हाट्स द बिग डील, आई डोंट वांट टू गो फॉर एन ऑफिसर? ना, इनिशियली मैं आपको पहले ही बोला कि माय गोल वाज क्लियर दैट एनी हाउ वॉट एवर इट इज आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, सो दैट इज कीप पुशिंग मी। एंड हाउ मेनी मंथ्स यू डिड एज एन एबी? 18 मंथ्स, 18 2 months. कॉन्ट्रैक्ट्स किया मैंने, उसके बाद मैंने। ओके, जब एबी के टाइम पे आप शिप पे थे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वर यू प्रिपेयरिंग ऑलरेडी फॉर योर एग्जाम्स? यस, आई वाज प्रिपेयरिंग बिकॉज मुझे अच्छे ऑफिसर्स मिले तो उनसे बहुत सारा डिस्कस किया मैंने। अब बहुत सारा डाउट्स है, एटलीस्ट एरर्स ये सब तो निकालना मैं उसी पे सीख गया था क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हाँ, बहुत सारा कुछ मैंने पढ़ाई भी किया शिप पे, रूल्स रेगुलेशंस, और शिप पे बहुत सारा बुक्स भी है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत सारा कुछ पढ़ता था वहाँ पे। All right. When we got down after the 18 months as an AB, when you घर गए, how long did you stay at home before you went on to next journey? 7 महीने रुका था मैं क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगा था, और मुझे एक्चुअली जाना था जैन बैच में, लेकिन वो मिस्ड आउट हो गया। तो फिर जैन के बाद तो एक नए बैच था, बैच स्टार्ट होने में टाइम था, तो 7 महीने कुछ हो गया था घर पे। जैसे शुरू में आपने बताया कि एग्जाम्स यूके से दिए, ऐसा कुछ पहले से डिसाइडेड था कि यूके से ही दूंगा मैं, या इट वाज अ लास्ट मोमेंट डिसीजन? इट वाज लास्ट मोमेंट डिसीजन। उसके पहले भी मैं सोचा तो था ही कि क्योंकि इंडिया में टाइम कंज्यूम ज़्यादा है कंपेरेटिव टू यूके। पर ऐसा क्यों होता है? अभी बहुत सारे ऑफिसर्स तो इंडिया से ही, अगर आप यस, पीसी कैडेट्स को देखोगे, मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग इन इंडिया, यस। मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू यूके आल्सो, but I personally I'm unable to understand what is the difference between UK and Indian examinations, and especially with respect to crew. Many crew are only taking the exam in UK. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि why UK and why not India? तो व्हाट आई बिलीव कि इंडिया में एज आई टोल्ड यू कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा है और प्रोसेस थोड़ा लंबा है। लाइक पहले 2 महीने का फंक्शंस फाउंडेशन करना रहता है, देन 4 महीने का एनसी कॉलेज है, देन अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर एग्जाम्स। So I just want to interrupt for our viewers. तो 2 months की क्लासेस हैं पहले, यस, देन 4 months के एनसीवी कॉलेज। एनसीवी का, यस, नियर पोस्टल वेसल, यस, you have to do the college. यस, Then यू हैव टू अप्लाई फॉर एग्जाम, for the NCV exam, एनसीवी। यस, so you have written and oral exams both? नो, यू विल हैव रिटन एग्जाम। Written exam. यस, How many of them? 5 पेपर्स। Five, I think. एज आई थिंक। So after you clear the exam, then you get a NCV license. यस, Second mates. यस, All right, and then then you have to appear for FG function, FG functions. which is 4 months. Yeah, Then 4 to again 9 you months. have your papers, Written exams. written exam, And then you again then have to apply for orals. oral, and then after that you have extra courses. Yes. So So that takes a lot lot of of time. But in UK, how's the process? UK you have only 6 months of college. उसके बाद एग्जाम रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, और रिटन एग्जाम भी कॉलेज खत्म होने का 1-2 वीक के बाद ही रहेगा। एंड उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कोर्सेज है, और उन बीच में आप ओरल बुक भी कर रहे। तो जब भी मैं यूके में था तभी तो ऑनलाइन ओरल चल रहा था, तो वी हैव टू बुक ऑनलाइन ओनली। सो जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रहे वो टाइम पे हम लोग ओरल बुक भी कर सकते थे। एंड या And someone told me कि NCV के एग्जाम्स इंडिया में सिर्फ 3 बार होते हैं साल में, यस, और अभी तो जो सेकंड मेट्स के हैं और मास्टर्स के हैं, दैट इज हैपनिंग एवरी मंथ. So that is also, I think, another Yeah. drawback. यस, और UK में every month you can appear for orals? हाँ, यू विल गेट डेट। Okay, you'll get there. या Okay, so how much money generally is required if somebody wants to go in UK and appear for exams and then come back in one go? सो इट इज अबाउट 14 to 15 lakhs। That's a big amount, यस, very big amount. I think India में तो उससे आधे से भी कम में हो जाएगा, जाएगा, but time ज़्यादा टाइम लगेगा. जाता है। An amount of money that you will lose as a salary, because if Yes. you don't sail, you're not getting that salary. तो ये 15 lakhs कैसे फाइनेंस किया? फाइनेंस थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबल था, एंड मैंने पूरा करियर में मीन्स मेरा थ्रू आउट 36 मंथ जो भी मैंने अर्न किया उसमें से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि एट जब भी एग्ज़ाम देना रहेगा वो टाइम पे मुझे पैसे तो चाहिए। तो मैंने पहले से प्री प्लान कर दिया था कि हाँ मुझे सेविंग्स करना है, तो थोड़े बहुत मैंने पैसे सेविंग्स कर दिए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव बाइक और एक्सपेंसिव कार, जैसे ही तुम सीमैन बने या एबी बने, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ?
नो एक्सपेंसिव फोन्स भी थे, बाइक्स भी थे, बट थोड़े बहुत अमाउंट मैनेज मैंने किया मैनेज थोड़ा, किया उस पे। just because you had your goal very clear, यस, you had to save that money. यस। So before going to UK, how did you prepare? How did you prepare? So you have, I mean, you have to apply to a college or you go for a visa. Can you just briefly explain the process? Yeah, I applied in college directly. I mailed to them, and then मेल पे बात होने लगी वहाँ की जो डीन है उसके साथ। उन्होंने गाइड किया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। देन वी यूज्ड टू सेंड दैट, एंड स्लोली स्लोली, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन स्लोली स्लोली ऐसे हो गया जैसे। कितना टाइम लग जाता है, मतलब बिफोर व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दिस प्रोसेस एंड बिफोर यू रीच यूके, तो उसके बीच में अराउंड 2 to 3 3 months months का टाइम लग जाता है. All right. And this 14 lakhs that you told me, 14 to 15 lakhs. Yes. So this payment has to be done in one go or partly, or initially you have to make some payment and No, 14 lakhs including my lodging and everything. yes। तो 7 7 लाख मेरा कॉलेज का फीस था। Okay. तो फर्स्ट शॉट में हाफ हाफ फी मैंने पे किया, एंड ये लोग ऑब्वियसली हाफ ही मांगेंगे। देन वंस यू गो देयर, देन अदर मींस अदर Expenses will come in. या। तो जब यूके पहुंच गए तो वहां पे कैसा प्रोसेस था, मतलब how the classes happen or I mean what is the curriculum? It is like it is totally new to me because I never stayed for a long time in a one country. Their culture is totally different, and I got some good experience from there also. तो इनिशियली 9 to 5 कॉलेज रहता था मेरा। देन उसके बाद मैं घर पे जाके How many days a week? 5 days a week? 5 days, या फ्रॉम मंडे टू और फ्राइडे। कितने महीने की क्लासेस होती हैं? 4 से 5 महीने तक की कॉलेज रहेगी। ओके, या ऑलराइट। और उसके बाद देन एग्जाम्स के लिए यू कैन बुक इमीडिएटली? नो, कॉलेज बुक करेगा। ओके, आफ्टर या 5 months? या बिफोर, मतलब जब भी कॉलेज ही चालू है, ये 1 2 3 महीने के बाद ही कॉलेज बुक करके रखेगी हमारे लिए, एंड वी हैव टू सम प्रोसेस होता है। कॉलेज टाइम पे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, इस डेट को हमारा एग्जाम है। ऑलराइट। रिटन एग्जाम एंड यस। ओरल एग्जाम? नो, रिटन एग्जाम ओनली। ओनली रिटन? ओरल के लिए हमको खुद ही बुक करना रहता है। ओके। या और रिटन एग्जाम के बाद यू गेट सम टाइम बिफोर यू गो फॉर योर ओरल्स फॉर प्रिपरेशन? यस, आई गॉट सम 3 months। I've heard that a lot of people who are going there for examinations, they are in their off hours, they're working also to make some money. So were you also working? यस, आई वाज वर्किंग। Okay, how was your routine? How were you managing your study and work together? So morning 6 o'clock I used to go on a job, Okay. and 2 o'clock मेरा ड्यूटी ऑफ होता था। देन 2 बजे से आके मैंने स्टडी चालू कर देता But था। this was in between when you had holidays, right? यस, But during the classes, were you working? समटाइम्स, नॉट एवरी डे। हाँ. क्योंकि मंडे टू फ्राइडे कॉलेज रहता था, तो वो टाइम पे मैं नहीं जाता था। या सैटरडे संडे कभी कभी जाता था। And you can make good money out there? यस। How much money did you make? Did you ever calculate? Lastly I calculate I have covered my all fees. So 14 lakhs or 7 lakhs? Around 10 11 lakhs I have covered. So you made that much money, Yes. which is good, yeah. Yeah, बट पढ़ाई के साथ काम करना, ये दोनों मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं होता था? वेरी डिफिकल्ट सर। एक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर काम काम पे जाओगे, देन आपके माइंड में एक ही रहेगा कि हाँ, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो ये दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो। फिर भी यू मैनेज्ड? यस। Good. So how was your experience in the oral examination when you sat in front of the surveyor? Was it a offline oral or an online? ऑनलाइन ऑनलाइन Online. या So what was going on through your mind? आई क्लियर इन अ सेकेंड अटेम्प्ट। Okay. सो फर्स्ट, पहला जो अटेम्प्ट था उसमें मुझे जो मेरा डर था अंदर हाँ. कि हाँ, एक सर्वेयर के सामने कैसे परफॉर्म करना है, तो वो क्लियर हुआ। देन सेकंड टाइम जब भी था, उनके उनके बीच में मैंने 3 मंथ्स का ब्रेक लिया, Okay. और मैंने फुल पढ़ाई किया। Alright. और ऐसे पढ़ाई किया कि हाँ, मुझे क्लियर करना ही है कैसे भी समहाउ। मैंने बहुत सारा टाइम लिया ओरल के लिए। देन एग्ज़ाम जैसे हुआ, मतलब क्लियर हो गया। But this oral was online, so you were in India by that time? यस। Okay, so you appeared from India. यस। Okay. And then once you clear your orals, what is the process after that? How long does it take for your COC to come in your hand? इट टेक्स ओनली 15 to 20 days ओनली। जस्ट मुझे डॉक्यूमेंट जो मेरा है, CDC पासपोर्ट है, वो सब। नो, CDC एंड ऑल जो कोर्सेज है ना,
SSW कोर्सेज वो मुझे सबमिट करना रहता है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स इंडिया से यूके भेजना रहता है, तो फिर वहाँ पे वेरीफाई होता है, देन टेक्स 15 डेज। बट ओरल से पहले कुछ GMDSS और भी कोर्सेज होते होंगे, यस तो वो भी यूके में ही करने पड़ते यस, मैंने मेरा जो कॉलेज था वहाँ पे इंक्लूड था, हैं? ओके। तो मैंने वहाँ से ही कर लिया। And this is between when once your classes finish and you finish Yes. your written Yes. and before orals, in between that Yes. time. Yes. All right. तो उसी टाइम पे तुम्हारा ये सब एडवांस कोर्सेज भी Courses हो हो गए गए। और GMDSS भी हो गया। एडवांस कोर्सेज लाइक वो अलग है, एग्डिस कोर्सेज हाँ, है, EDH है, देन ये GMDSS मैंने यूके से किया, बाकी जो AFF है, MF है, ये सब मैंने इंडिया में आके किया। तो इंडिया में भी MCA अप्रूव्ड कोर्सेज चलते हैं? यस, कौन से इंस्टीट्यूट से किया? बीपी मरीन में। बीपी मरीन में Yes. किया। But I've heard that the MCA approved courses are very expensive. Yes, very expensive it is. Can you give me comparison? How expensive is that compared to like India DG shipping approved? DG approved, it is about 3,999. About 4,000. Yes, and MCA approved, it is like 39,999. Almost 40,000. 40,000, yeah. That's a huge difference. Yeah. All right. So anybody who is taking his license from UK, Yes. he will have to go through these expensive courses Yes. in India. Yes. So you have to. Did you keep budget for that also when Yes. you were considering how Yes. much money you're going to spend? All right. So विकास, जब एक बार लाइसेंस हाथ में आ गया, उसके बाद क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन था तुम्हारा? जैसे लाइसेंस आया तो मैं तो बहुत खुश था, फैमिली भी बहुत खुश थी, लेकिन अंदर अंदर मुझे मतलब आई वाज स्कैर्ड कि लाइसेंस तो आ गया, अभी जॉब मिलना अनदर बिग चैलेंज। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, सी जॉब पे अप्लाई किया, देन बहुत सारी कंपनी से मैसेजेस भी आने लगे व्हाट्सएप पे कि आर यू अवेलेबल विद जॉइनिंग। आई सेड ओके, आई एम रेडी टू जॉइन। तो उन्होंने बोला कि ओके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर कीजिए, तो मैंने बहुत सारा मेरा जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो मैंने शेयर किया, लेकिन उनके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देन आई कॉल देम, बोला कि अभी वैकेंसीज नहीं है, वी लुक फॉर अ टैंकर बैकग्राउंड। ओके। क्योंकि मैंने प्रीवियसली सब बल्क एरियर्स किए, तो टैंकर का एक्सपीरियंस नहीं था। बट ठीक है, तो एक दो कंपनी से कॉल भी आए, एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू भी दिया, देन सेम उन्होंने बोला कि विल कॉल यू। तो कितना टाइम इसमें लगा तुम्हें, मतलब व्हेन यू गेट योर लाइसेंस उसके बाद कितना टाइम यू केप्ट वेटिंग पेशेंटली कि ओके आई कीप वेटिंग फॉर सम कॉल? 1 महीना कुछ लग गया। तो यू वेटेड फॉर 1 month? 1 month। और उसी दौरान यू अप्लाइड इन ऑल कंपनीज? यस। और कॉल भी उसी दौरान आए? यस, आने लगे थे कॉल्स। ओके। और फिर ऐसा नहीं आया कभी मन कि यार अभी जॉब अगर नहीं मिल रही है एज एन ऑफिसर यस। तो वापस एबी में ज्वाइन कर जाऊं? हाँ, मुझे लगा कि अभी ऑफिसर्स में तो मुझे नहीं मिल रहा किधर भी, तो यस मैं किधर ट्राई करता हूँ एबी में जाने की। तो मैं ऐसे ट्राई भी कर रहा था, और टैंकर्स पे जाने की मैं सोच रहा था, क्योंकि टैंकर का मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही था। अच्छा। और एक कंपनी से मुझे पहले कॉल आ गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ओके। देन वहाँ पे डिले चल रहा था। Okay. इंटरव्यू में क्लियर भी हो गया, उन्होंने Okay. बोला कि अभी हो जाएगा ज्वाइनिंग, लेकिन वहाँ पे डिले हो रहा था। तो मैं कितना टाइम तुमने उस कंपनी ने तुम्हें वेट करवाया? मुझे 1 महीना वेट करवाया। Okay. 15 डेज का बोला था मुझे कि हाँ। 15 डेज में ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया। तो फिर मैंने कंपनी में गया, कंपनी में पूछा कि सर क्या हुआ, देन उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि अभी 4 महीना लगेगा। तो मैंने सोचा कि अभी मैं टैंकर पे चला जाता हूँ, 4 महीना मैं वेट नहीं कर सकता। तो मैं टैंकर का कोर्स करने में चला गया, और मैं कोर्स ही कर रहा था। मंडे से सैटरडे मेरा कोर्स था, और फ्राइडे को सेम कंपनी का मुझे कॉल आया। ओके। बोलता है कि अभी आप रेडी हो, मतलब आप घर पे हो? मैं बोला हाँ घर पे हूँ। तो काम करो, आप ऑफिस में कल आ जाना। मैं बोला सर अभी मैं इधर ही जो मुंबई में हूँ। तो ठीक है, तो आप अभी आ जाओ। तो मैं सीधा ऑफिस में गया। जैसे ऑफिस में गया, उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बोल दिया कि कल आपका ज्वाइनिंग है एज अ थर्ड ऑफिसर। आई वाज वेरी हैप्पी, प्लेजेंट सरप्राइज। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आप आ जाना ऑफिस में, मेडिकल कर लेंगे, देन सेम डे आपका फ्लाइट भी रहेगा। मैं बड़ा खुश था। तो फिर मैंने बैग सब पैक करवा लिया घर वाले से, देन नेक्स्ट डे आ गया और मेरा ज्वाइन हो गया। Overnight you traveled to your hometown in Gujarat. Yes. And then next day came back again for Yes. joining. और ये जो इंटरव्यू हुआ था, Yes. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे तुमसे इन इंटरव्यू? बेसिकली दे आस्क्ड मी अबाउट नेविगेशन सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशंस दिए ओके, थे। कॉल रेट सिचुएशंस दिए। यस, और रूल कोड करके मुझे सिचुएशन का आंसर देना था। एंड रडार के बारे में ऑब्वियसली उन्होंने पूछा। देन GMDSS के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हुआ मेरे पे, एंड सेफ्टी रिलेटेड मेरे फायर के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मुझे पूछे गए। When you went for this interview, Yes. were you properly dressed? Yes. You were in formals and Yes. tie? Clean shave and everything, sir.
हाँ आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है Yes. many a times जो वॉक इन इंटरव्यूज लोग Yes. देते हैं वो जीन्स टी शर्ट चप्पल में चले जाते हैं that is not right Yes. it doesn't put a good impression so you should always go in formals with tie properly shaved and shining shoes so I think that gives a good impression Yes. also और उसके बाद you joined immediately I think probably the next Yes. day Yes. so what was your experience like when you joined on board? Because after crew background, you were joining as an officer for the first time. Of course, you had observed your officers Yes. during your crew time, but observing and being one is a totally different Totally story. different. So how was your experience on the first day So when you फर्स्ट joined? डे मेरा ऐसा था, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि और मैं नर्वस भी था, क्योंकि मेरा फर्स्ट शिप एज ऑफिसर है एंड कंटेनर है। मैंने कंटेनर कभी किया नहीं, तो मुझे डर हो रहा था अंदर से ही। तो बिफोर माई वॉच आई वेंट टू चीफ ऑफिसर, आई स्ट्रेट अवे टेल हिम दैट मेरा ये फर्स्ट वेसल है एंड मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ाई किया, वो डिफरेंट पार्ट है। हाँ, practical aspect is different. या तो उन्होंने, वो अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा एक्सप्लेन किया, मेरे को गाइड किया कि ये चीज़ करना रहता है। ठीक है, तो फिर मैंने डेक पे गया, देन गैंगवे पे एक एबी से मिला, उनको भी मैं पूछा, उन्होंने अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया। देन वहाँ पे थर्ड अफसर था, ऑब्वियसली आई वाज इन पैरेलल सेलिंग विद थर्ड अफसर। सो थर्ड अफसर को मैंने ऑब्जर्व किया, वो क्या कर रहा है वो सब मैंने देखा। 10 दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया। 11 दिन से मैं बोला कि नाउ आई विल डू दैट, यू जस्ट ऑब्जर्व मी, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट लेट मी नो। उन्होंने मुझे दे दिया और मैं सब करने लगा, और फिर ऐसे मेरा हो गया। पैरेलल सेलिंग तुम्हारी 10-15 डेज की यस, पैरेलल सेलिंग थी सर या पैरेलल सेलिंग। तो उस टाइम पे व्हेन यू वर पैरेलल सेलिंग विद द ऑन बोर्ड थर्ड ऑफिसर बहुत सारी चीजें थर्ड ऑफिसर एक करता है ऑन जहाज पे यस, पेपर वर्क हो गया मेंटेनेंस हो गया लॉट ऑफ रिपोर्टिंग्स रिकॉर्ड्स वो सबसे क्विकली कैसे फेमिलियराइज किया तुमने अपने आप को बिकॉज यू नो वंस ही लीव्स देन यस, यू हैव टू डू यस, एंड बिकॉज यू वर फ्रॉम क्रू बैकग्राउंड तो ब्रिज पे उतना टाइम स्पेंड नहीं नहीं किया किया। तो हाउ डिड यू मैनेज कि जैसे कुछ कंपनी के रिपोर्ट्स होती हैं कुछ पीएमएस के वर्क ऑर्डर्स रिकॉर्ड करने होते हैं तो वो सब कैसे तुमने 15 डेज में कैचअप किया मेरा वॉच स्टार्ट होता 8 बजे से, तो मैं 6 बजे चला जाएगा ब्रिज पे। ओके और मैं सब जो मेरा एसएमएस मैनुअल्स है वो पढ़ेगा, मैसेजेस जो थोड़ा सा का जो फोल्डर है उसमें देखेगा कि क्या क्या चीज़ है। देन एलएसएफए मेंटेनेंस फाइल्स है, ये सब देखता रहता था। फिर तो मैं 12 बजे के बाद डेक पे जाएगा, डेक पे थोड़ा काम देखेगा, जैसे थोड़ा सा रेस्ट के लिए जाएगा, मैं और कुछ काम रहेगा वो कर लेगा। मुझे देखना था एटलीस्ट कि मुझे करना क्या है। एंड मैंने एक्स्ट्रा आवर्स दिए, हाँ मेरे करेक्ट रेस्ट टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा आवर्स दिए, क्योंकि थोड़ा सा तो जाने ही वाला है, करेक्ट उसके बाद सब मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला उसी में। and once the third officer left यस। and your first watch solo watch how was the experience and what was the traffic like सो जैसे पोर्ट से डिपार्च हुआ, मेरा पोर्ट था चिटागोंग। सो जैसे डिपार्च हुआ फर्स्ट वॉच में मैं आया नाइट टाइम पे, तो मैंने देखा कि पूरा सी रूम फिशिंग वेसल से भरा पड़ा है, और फिशिंग नेट्स भी है। तो मैं तो बहुत डर गया कि अभी मुझे करना क्या होगा, मतलब कैसे लेके जाऊंगा मैं। चीफ ऑफिसर मुझे बोला कि बस यूं यूं लेके जाओ। ऑब्वियसली वो बोलेंगे यू एक्सपीरियंसड है, तो मुझे डर लगा। लेकिन हाँ, कैप्टन वहाँ पे था, उन्होंने बोला कि डोंट वरी, मैं इधर ही हूँ, आई गाइड यू। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। देन मैं अच्छे से लेके भी गया, जब किधर गलती हुआ उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो ऐसे करके हो गया, और मेरा रूट सेम है, चिटागोंग टू सिंगापुर। तो मैं ऐसे करके सीख गया, क्योंकि सेम रूट कर रहे हैं सर। हाँ तो अभी तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया पूरा एक्सपीरियंस। तुम्हें लगता है अभी तुम्हें सब एक्सपीरियंस हो गया यस। है ऑल राइट व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चेंज इन योर एटीट्यूड डेक क्रू से ऑफिसर बनने के बीच में जब तुम ऑफिसर बन गए तो तुम्हें क्या लगता है बिगेस्ट चेंज क्या आया तुम्हारे एटीट्यूड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, हम्म क्योंकि व्हेन आई वाज डेक क्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना था नहीं, थोड़ा बहुत था। लेकिन जैसे मैं ऑफिसर बना, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मैं किसी के मतलब अंदर नहीं काम करूँ, मेरा खुद का ही काम है। एलएसएफ जो मेंटेन मुझे करना है वो होना ही चाहिए, हाँ क्योंकि मेरे पीछे मेरे जो क्रू मेंबर है उसकी लाइफ का सवाल है। एब्सोल्युटली तो ये you're रिस्पॉन्स। answerable for those things यस, because crew mein you're not answerable you can get away by saying sorry यस, but as an officer if your lifeboat is not prepared not ready your यस, equipment is expired and of course your senior officers cannot go every day to check all this and that's why you have an officer certified officer on board यस। and do you think you made any mistakes as deck crew which you realized that if you had not made you would have been a better officer during your first months on board as an officer
मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा टाइम थर्ड ऑफिसर के साथ स्पेंड करना चाहिए As a deck crew. यस Mhm. क्योंकि मुझे जानना था कि हाँ वो कर क्या रहा है मीन्स उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब मैं वो टाइम पे मोर ज्यादा देता जान लेता तो ज्यादा और टाइम इजी दे हो तो जाता. और इजी होता है यहाँ पे आके जैसे मैं थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन किया इजी रहता है मेरे लिए इन योर ओपिनियन, जो डेक क्रू अभी सेल कर रहे हैं या फ्यूचर में आएंगे और वो भी ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस तुम दोगे जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो जर्नी है फ्रॉम क्रू टू ऑफिसर वो उतना टफ ना हो? मेरा तो यही कहना है कि अपना एक गोल सेट करिए देन गोल सेट करोगे और अपने ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स को ऑब्जर्व करो कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या कर रहे हैं वो मतलब वो रैंक के लिए आप डेडिकेट रहो मोटिवेशनल रहो देन कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है तो जब अगर you know that you are going to be an officers in future so you should know that what is the responsibility of means officers एंड ऑफ कोर्स क्रू का अपना भी काम रहता ही है, yes डिपेंडिंग ऑन रूट, स्केड्यूल, टाइप ऑफ कार्गो, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं वर्क आवर्स. तो आई थिंक जैसे कि तुमने एक्स्ट्रा आवर्स दिए, yes रेस्ट आवर्स में भी काम किया yes फॉर योर प्रमोशन या अपनी नॉलेज के लिए, yes आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. important अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इजी, आई थिंक. yes है ना? extra hours देना बहुत important है And knowledge is one thing, yes but I think confidence is also important because, like you said, not many people hire officers from crew background. So even if a person is having good knowledge and he doesn't have a confidence, then it will not be very easy for him yes to find a job as an officer. yes Any last piece of advice to our viewers? मेरा तो यही कहना है कि set your goals hard work करो then spend more time with the senior officers try to learn new things on the bridge on the ship only yeah that's it All right. So I think that's a wonderful podcast that we had today with you. yes A lot of youngsters who are watching you, you are an inspiration for them. I'm sure कि बहुत सारे doubts भी clear हो गए and कैसे approach करना है इस rank को वो भी काफी कुछ clear हो जाएगा. So it was nice talking to you. Thank you, Vikas. thank you sir Thanks a lot. Thank And thank you for our viewers that they are watching us and I'm sure they will learn something out of it. Thank you very much.